Hello students, welcome to your channel Zebish English Classes. I hope you all are good and fine, and in this video lecture I'll go ahead as promised with this topic, degrees of comparison and case 1. If you are not able to understand what is case 1 in this topic, then I request you to please go through that video lecture where I have explained to you the basic of degrees of comparison and adjective, and how this topic has been taken from the part of a speech called adjective, and also an introduction of this transformation of sentence named degrees of comparison. So you please go through that video lecture. It will help you to understand this topic completely. In this particular video lecture, I'll go ahead from there onwards and I will explain you what is case 1 in this topic. So as I have told you that case 1 is when there is only one superlative. I had explained this to you that case 1 is when there is only one superlative. And I had also taken this example that in 12th standard there are 4 students, A, B, C and D. Like I can take here A, B, C, D. These are 4 students, 12th standard, and science section I have taken. Then A is tall, B is also tall, C is tall, D is tall. Now their heights 6 feet, 5, 8, 5, 9, 5, 8, 5, 7. So this is what we had taken, right? So if we see here, in 12th standard science section, at present we have got 4 students. This is the strength of 12th standard. There are overall 4 students, A, B, C and D. A is 6 feet tall, B is 5'9", C is 5'8", and D is 5'7". So if we see here, who is the tallest student in this class, so we can say A is the tallest student in the class. यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो A के जितना ही टॉल हो. इन सब को अगर हम कंपेयर करें, इन सब की हाइट को, तो हम देखेंगे कि A सबसे ज्यादा टॉल है, A की हाइट सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर और कोई भी नहीं है B, C और D में से जिसकी हाइट A के बराबर हो. It means A is the tallest student in the class. ये तो एक बात है, और A के जितना कोई भी टॉल नहीं है. इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर एक ही सुपरलेटिव है, एक ही स्टूडेंट ऐसा है, एक ही बंदा है जो सुपरलेटिव डिग्री में है, जो सबसे ज्यादा टॉल है, और उसके इक्वल कोई भी नहीं है. So we can say A is the tallest student in the class. A is the tallest student in the class. This is your superlative degree. Case 1, because here you have only one superlative at a time. That is A. A के जितना टॉल कोई भी नहीं है. फिर अब इस सुपरलेटिव डिग्री को अगर कहा जाए कि आप पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो अब ये आपका क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, where you are supposed to change this sentence into a positive degree, but at the same time ensuring not to change the meaning of the sentence. That means कि यहाँ पर हमें अब tallest के जगह पर tallest को हटाकर tall यूज करना होगा, क्योंकि अब हम superlative word नहीं यूज करेंगे. यहाँ पर अब हम positive degree यूज करेंगे इस adjective का, क्योंकि we have to change this
into a positive degree. But we don't have to forget that particular rule, which is a golden rule of transformation of sentences, and that is that we cannot change the meaning of the given sentence when we are transforming it. So we have to ensure that when we even change this particular sentence into a positive degree, we must make it sure that the positive degree of this sentence should also carry the same meaning which is being carried by the superlative degree. Example, A क्लास का टॉलेस्ट स्टूडेंट है. इसका मतलब कि A के जितना टॉल कोई भी नहीं है. अगर हम इसे हिंदी में बोले, A क्लास का टॉलेस्ट स्टूडेंट है, इसका मतलब A के जितना टॉल कोई भी नहीं है. तो अगर हमने इंग्लिश में कहा A is the tallest student in the class, इसका मतलब no other student in the class is as tall as A. So no other student in the class. अब हमने other word का इस्तेमाल क्यों किया? This is very important. सबसे पहले हमने इसको जब देखो पॉजिटिव तो बन गया, टॉल वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमने इसको टॉलेस्ट से टॉल कर दिया, इसका मतलब हमने सुपरलेटिव से इसको क्या बना दिया? पॉजिटिव डिग्री बना दिया. बट नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि हमने नो अदर का इस्तेमाल क्यों किया. तो नो का इसलिए क्योंकि एक ही सुपरलेटिव था क्लास में, एक ही टॉलेस्ट स्टूडेंट था, उसके जितना टॉल कोई भी नहीं है, तो इसलिए हमने नो का इस्तेमाल किया. कोई भी उसके जितना टॉल नहीं है तो नो. अदर स्टूडेंट, क्यों अदर वर्ड का इस्तेमाल किया? क्योंकि अगर हम इस क्लास के बच्चों की बात करेंगे और अदर वर्ड का यूज नहीं करेंगे तो I will include A as well in that, because A is also a classmate of this class. He is also a part of this particular class, and when I'm talking about the students of this class, A will get included as sorry, A will get included as well. जबकि हमें A को A से थोड़ी कंपेयर करना है, A को अदर्स से कंपेयर करना है ना. A टॉलेस्ट स्टूडेंट है क्लास में, मतलब A के जितना टॉल और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है. तो ये जो और वर्ड आ रहा है ना, उसी के लिए हमने इंग्लिश में अदर यूज कर दिया. A के जितना टॉल कोई भी नहीं है की बजाय हिंदी में प्रॉपर्ली हम कहेंगे A के जितना टॉल और कोई भी नहीं है ना. मतलब A से हमने B को कंपेयर किया, C और D बाकी के क्लासमेट से कंपेयर करके हमने कहा कि कोई भी दूसरा बच्चा क्लास का, दूसरा बच्चा क्यों? क्योंकि अगर हमने दूसरा नहीं कहा तो A भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, और A को हम A से नहीं कंपेयर करेंगे, दूसरों से कंपेयर करेंगे. तो हम कहेंगे क्लास का कोई भी दूसरा बच्चा A के जितना टॉल नहीं है. नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज टॉल एज A, which means A is the tallest student in the class. So this is how in both the ways I have said the same thing about A, that A is the tallest student and no other student in the class is as tall as A. So I have said the same thing, same statement, same baat I have said in both the degrees, that is positive and superlative. Now you can be asked to change the same thing in a comparative degree. In that case, you will have to compare A to all the other students in the class, because here you have to use that comparative degree. That means the word taller. So you have to compare A with the rest of the classmates. That means other than A को छोड़कर A को दूसरों से compare करेंगे. A को खुद उससे तो compare करेंगे नहीं, A को बाकी की classmates से compare करेंगे. तो जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि A जो है वो taller है, तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री आ गया, टॉलर वर्ड का यूज हो गया. ए टॉलर है किससे? दैन एनी अदर स्टूडेंट
in the class। और ये हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, अब इसे हम समझेंगे कि हमने क्यों कहा A इज टॉलर देन एनी अदर। क्योंकि देखिए A इज टॉलर, ये तो हमें पता है कि वो सबसे लंबा है, सबसे ज्यादा टॉल है, मतलब वो टॉलर है। किससे टॉलर है? तो वो क्लास के हर दूसरे बच्चे से ज्यादा टॉलर है। तो इसका मतलब कि A B से भी टॉलर है, C से भी, D से भी, तो ये सब क्लास का पार्ट है। और A को हटा के हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे A क्लास के हर दूसरे बच्चों से, मतलब इनसे टॉलर है, ज्यादा टॉल है। A is taller than any other student, हर दूसरे बच्चे से, that means any other student in the class. So this is how I have said the same thing again in a comparative degree, that A is taller than any other student, which means A के जितना tall कोई भी नहीं है। So I hope you understood this case 1. So now case 2. In case of this case 2, we have to see that there is more than one superlative. So if we go ahead with the same example, that is 12th standard and science section. So we have 4 students here, that is A, B, C and D, with this height 6 feet and then 5'9", 5'8" and 5'7". So it happens that, let us assume a new student takes admission in the same class, and that new student is Mr. E, who is 6 feet tall. Being 6 feet tall, when he enters the class, he becomes one of the tallest students in the class, because already we have a student who is of the same height, that is A. अभी तक A की हाइट के बराबर किसी की भी नहीं थी, तो A को हम कहते थे A is the tallest student in the class. बट हम यहाँ पर देखें तो ये केस 2 है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पर, एक टाइम पर एक से ज्यादा सुपरलेटिव है। मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉलेस्ट है, क्योंकि वो सेम हाइट की है और वो सबसे ज्यादा हाइट की है। अच्छा, हम ये क्यों मेंशन करते हैं एक जगह पर, एक टाइम पर? क्योंकि अगर ऐसे देखें तो दुनिया बहुत बड़ी है और न जाने दुनिया में कितने लोग जो है वो सेम हाइट के, सेम कलर के, और बहुत सारी चीजें सेम हो सकती हैं। तो हम एक जगह, पर्टिकुलर जगह पे बात कर रहे होते हैं और पर्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे होते हैं। तो हम इस स्टैंडर्ड, इस क्लास की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास लिमिटेड स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 4, और जिसमें से हमने देखा कि ए टॉलेस्ट था, लेकिन अब ए टॉलेस्ट नहीं है, क्योंकि अब ई आ गया है, whose height is the same as A, एंड इनके जितनी हाइट किसी की नहीं है, तो फिर ई भी तो टॉलेस्ट हो गया। तो जब ई टॉलेस्ट है तो हम ए को टॉलेस्ट नहीं कह सकते, बट हम ई को भी टॉलेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम ए को टॉलेस्ट कहते हैं तो हमें नजर आता है ई भी तो है, ए को कैसे कह सकते हैं? और जब हम ई को टॉलेस्ट कहते हैं तो हमें नजर आता है ए भी तो है, हम ई को कैसे कह सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि ना तो हम ये कह सकते हैं ए इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ना हम कह सकते हैं ई इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्योंकि ना तो अब ए टॉलेस्ट है ना ई टॉलेस्ट है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ए इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम केस 2 कर रहे हैं तो हमारे पास ये चेंज आ गया, द टॉलेस्ट से हम वन ऑफ द टॉलेस्ट पर आ गए। और यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड करके
कि बताइए किस पार्ट में एरर है, और जानते हैं एरर किस पार्ट में होती है, यहाँ से एस हटा दिया जाता है, और एरर इसी पार्ट में होती है कि यहाँ पर एस होना चाहिए, क्योंकि ए टॉलेस्ट स्टूडेंट नहीं है, ए टॉलेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। जब ए किसी ग्रुप में एक है या ए से ज्यादा लोग सेम हाइट के हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा टॉलेस्ट है तो स्टूडेंट्स आना चाहिए। और ए क्या है, ए टॉलेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। सो ए इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर आपने करेक्ट इंग्लिश सीखी कि कभी भी अगर आप ऐसे कहते हैं ए इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इंग्लिश। यू मस्ट से इट इज A is one of the tallest students in the class. उसी तरह से अगर आप E के लिए बोलेंगे तो E के लिए भी आप यही कहेंगे E is one of the tallest students in the class. तो अब हम A को लेके चलते हैं। ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ये चीज हमें समझ में आ रही है। Just because we have got this word tallest and from this word tallest we can come to this conclusion that the given sentence is in the superlative degree. And here this is case 2 because A is not the tallest but one of the tallest students in the class. So now when we are doing transformation of sentences and you are instructed to transform this sentence into a positive degree, तो इससे पहले जब हम कर रहे थे केस 1 तो हम कहते थे कि A के जितना टॉल कोई भी नहीं है, no other student in the class is as tall as A. लेकिन यहाँ पर जब हमने क्लास देखा तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ए के जितना टॉल कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए के जितना टॉल एक है जो कि ई है, लेकिन कोई नहीं है ये नहीं कह सकते। इसका मतलब कुछ है जो ए के जितने टॉल है। तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव डिग्री ऐसे होगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एक से ज्यादा है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स कहाँ पर, इन द क्लास, और क्योंकि यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स कह दिया तो यहाँ पर आ जाएगा आर, इज नहीं आएगा। इज सिंगुलर के लिए आ रहा था, अब प्लूरल है तो आर हो जाएगा। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज टॉल एज ए। This is our positive degree. Very few students in the class are as tall as A. Then we have to change it into comparative degree. अच्छा देखिए, पॉजिटिव में क्या कुछ है जो A के जितने टॉल है, और वो कुछ हमने किसके लिए यूज किया है, असल में E के लिए। तो हमने कुछ क्यों कह दिया, बहुत कम है, वेरी फ्यू मतलब कुछ है, बहुत कम है, बट है, क्योंकि हो सकता है कल को एफ भी आ जाए, और सेम हाइट का ये दुनिया बहुत बड़ी है, एंड पीपल आर यू नो वेरी ऑफन यू कैन फाइंड पीपल हु आर ऑफ द सेम हाइट, सो दिस इज नॉट अनकॉमन टू फाइंड सच पीपल, है ना। पॉसिबल है कि कोई एफ आ जाए जिसकी सेम हाइट हो, और फिर कोई जी भी आ जाए जिसकी सेम हाइट हो। इसका मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर वेरी फ्यू कह देते हैं कि कुछ है लेकिन है जो ए के जितने टॉल है क्लास में। ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब जब हम इसका कंपैरेटिव करेंगे, विच मीन्स वी आर गोना कंपेयर ए विद अदर क्लासमेट्स, तो हम देखेंगे कि अच्छा ए टॉलर है बी से, टॉलर है सी से, टॉलर है डी से, लेकिन जब हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, ई भी तो अदर स्टूडेंट में आता है, जब हम ई पर आएंगे तो हम कहेंगे अच्छा टॉलर है, नहीं, ये टॉलर नहीं है ए से, सॉरी ए टॉलर नहीं है ई से, ए ई के बराबर टॉल है, ई से टॉलर नहीं है। इसका मतलब अब हम ये कहें कि ए इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ए क्लास के हर दूसरे बच्चे से ज्यादा टॉल नहीं है, क्योंकि हर दूसरे बच्चे में ई भी आ गया और ई से ज्यादा टॉल नहीं है ए।
तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एक क्लास के हर दूसरे बच्चे से ज्यादा टॉल है, हर दूसरे बच्चे से ज्यादा टॉल है, ये नहीं कह सकते। हर दूसरे के लिए हम कहते थे एनी अदर, अब हम एनी अदर नहीं कह सकते। ए इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास नहीं कह सकते, क्योंकि एनी अदर में ई आ जाएगा जो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ए क्लास में बहुतों से ज्यादा टॉल है। अब बहुतों में कौन आ गया? बी, सी और डी, ई हट गया। तो बहुतों से ज्यादा टॉल मतलब हम मोस्ट अदर कह सकते हैं, लेकिन हम एनी अदर नहीं कह सकते। तो इसलिए अब जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो हम एनी अदर नहीं कहेंगे, हम मोस्ट अदर कहेंगे। तो दिस इज हाउ वी विल गो। ए इज टॉलर, सिर्फ उतना ही चेंज होगा देन। ए टॉलर है किससे? एनी अदर से तो नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे? मोस्ट अदर। अच्छा, हर जगह पर देखिएगा केस 2 में क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम एनी अदर कहते थे तो हर एक बच्चे से वो ज्यादा टॉल था, तो एनी अदर में हम टॉलर कह देते थे, सॉरी एनी अदर में हम स्टूडेंट वर्ड का इस्तेमाल करते थे। बट हियर जब हम कह रहे हैं मोस्ट अदर, तो इसका मतलब हमने एक एक बच्चे से इंडिविजुअली कंपेयर नहीं किया, क्योंकि हम जब एक एक से करते तो ई से भी करते, हम एनी अदर कहते तो वो रॉन्ग हो जाता। यहाँ पर हमने बहुतों से कह दिया, इसका मतलब बी, सी और डी से एक साथ कंपेयर कर दिया, तो जो कि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, 3 हैं, तो इसलिए मोस्ट वर्ड लगा है और मोस्ट के केस में ये प्लूरल बन गया, और क्योंकि प्लूरल बन गया तो हमें स्टूडेंट की बजाय स्टूडेंट्स लिखना होगा। तो ये हो जाएगा ए इज टॉलर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो ए इज टॉलर किससे? देन मोस्ट अदर, बहुतों से ज्यादा टॉलर है वो क्लास में। तो ए इज टॉलर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। So this is how, this is the base of your degrees of comparison. I have categorized it in 2 cases on the basis of the number of superlatives that we find at a place and at a time. So this is how it becomes convenient for us to understand the rules of degrees of comparison when we classify this topic in 2 cases. And this is how we are also able to understand by correlating with this example. You know how nicely कि कैसे आपका positive is changing into comparative and then superlative, and you can easily understand that. I hope you understood this much at least. If you have understood this much, please subscribe to my channel. Please like the video and share with your friends, and thank you so much for watching.